एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने इंट्रोडक्शन में 10 जुमले बोलने थे, तो बंदा कम से कम 8वें 9वें पे थोड़ी उसकी लय डाउन हो जाती है। और मीन के आपके जैसे मौलवी साहब होते हैं, वो जब अभी तकरीर ख़त्म नहीं होती, आपको पहले समझ आ जाती है कि अब तकरीर ख़त्म होने वाली है। Yes, sir. Why you want to join Pakistan Army? Sir, when I was born, all my relatives and the people I met, they used to say to my parents that your son will become an army officer. These words inspired me to join Pak Army. I met officers and their Did you apply personality. in AMC? No, sir, I did not apply in AMC. Why? Sir, I was not interested in AMC. Then why you applied for the MD GAT? Sir, my father told me to apply for MD. And he didn't tell you to apply for the AMC. No, yes, sir, he did not tell me to apply. How for this AMC. could happen? He himself is from AMC, Yes, sir. and he never told you to join Pakistan Army as a army doctor. Why? Sir, because sir, he said that I have served my life in army. I have spent my time in AMC, but I don't want my son to go into AMC. Rather, Why? sir, according to him, there are better opportunities in civil sector. For example, he wanted me to become a doctor and go abroad. So he said that rather than being going to AMC. Like, he didn't want to join. He didn't want you to join army, Yes, sir. and still you have applied for PMA. Yes, sir, I have. He opposed your decision, Yes, sir. and you are here in front of me Yes, sir. against the will of your father. Yes, sir, I convinced him. If you, yes, you convinced him, Yes, sir, I convinced him. and he was convinced. Yes, sir. Suppose you get the recommendation letter, and you get your joining instructions, and day after tomorrow you will have to report to PMA, Yes, sir. and your father, he orders you not to go to PMA. Will you go to PMA? I will, sir, try my best to convince him. You don't have that option. Either Okay, sir. you go to PMA or you don't go to PMA. And your father's orders are very simple. Don't go. Then what will you do? Okay, sir. I will go, sir. मत जाओ. मत जाओ, ठीक है सर. अभी आपने आर्मी में अप्लाई किया Yes, sir. because you convinced him and he agreed and you applied. Yes, sir. If he had not agreed, you would have not applied. Yes, sir. बिल्कुल. So same case here. ओके सर. सर एक इसमें क्वेश्चन था कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सिविल हैं, बट उन्होंने कहा था कि आप ये बता दें आर्मी ज्वाइन करने का, कि पापा ने कहा है, तो अपनी पूरी OPI हर एक चीज़ के अंदर ना स्टार्ट से ले आए कि वो तो देखें, मेरी बात सुने. जी. मेरा ये मानना है कि ये सिविलियंस होते हैं ना, they have got no idea what अबाउट is आर्मी going on साइकोलॉजी. in army officer mind. यस सर. Army officers, they love the truth. यस सर. The way you were talking to me, I was loving you. Okay, he is telling the truth. यस सर. But if you will try to tell a lie, they'll get you. डन सर. He not. You fail at ISSB just because of this reason, that you become artificial. They say that don't show our consciousness, false projection, or a superficial behavior. Why you got less marks in MD GAT? यस सर. सर आई डिड नॉट वांट टू बिकम अ डॉक्टर. So have you got? Have you joined some academy for the MD GAT? यस सर, आई डिड ज्वाइन. You are a stupid asshole, no? You wasted your time, you wasted the money of your father, and still you did this MD GAT यस सर. with half heart. Then how can I trust you that you will be able to work with a full zeal and zest in the army? Sir, I did not opt for a medical career because I did not like it. Meanwhile, वो जो मैं कहता होता हूँ ना कि
आईएसबी में सच बोलना चाहिए, बकना नहीं चाहिए। Yes, तुम sir. बक रहे हो। Hmm. डोंट टेल हिम दिस थिंग Okay, sir. कि मैंने हाफ वर्क, सर आई ट्राइड माई बेस्ट। Okay, sir. अब्बा जी ने एकेडमी भी ज्वाइन करी, सारी बात है, उसकी भी कोई फीस दी होगी आपको, बिल्कुल सर। ठीक है कि नहीं? Yes, sir. और आप गए भी, रेगुलर गए, पंचुअल गए, Yes, sir. फिर भी अगर आप सही से नहीं पढ़े तो फिर तो वो 3 हर्फ होने चाहिए आपके ऊपर। यही तरीका Done, और sir. क्या, और तो कुछ भी नहीं। तो Okay, ये sir. थोड़ा इस बात को समझो। ओके सर। सर जो वैसे जो सच है वो सच है, पापा वाकई नहीं मान रहे, और वो तो भी कहते हैं आईएसएस भी देने ही नहीं है, आपने बेशक छोड़ दिया। अब इसके बारे में क्या किया नहीं नहीं, देखें बात सुने, वो तो आपने कन्विंस कर लिया ना। यस सर। लेकिन अगर बात वो जो मैंने आपको SRT SRT डाली है यस सर। फॉर यू ना, देयर इज नथिंग लाइक फादर। यस सर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने एक्स्ट्रा मैथ का पेपर दिया है, ये भी अब्बा जी के खिलाफ जाके दिया। ये अबू जी के कहने पे किया सर। ये राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग? सर आई एम डूइंग बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम मिनहाज यूनिवर्सिटी। You have got 83% marks in intermediate, यस सर। and you got 150 marks in mathematics. How many marks you got in biology? सर 170 आउट ऑफ 200। You're good at biology as compared to maths, according to your marks. यस सर, अकॉर्डिंग टू माई मार्क्स। Otherwise, you are good because you have studied biology properly. Additional math, so you would have studied for few months. यस सर, ओनली And- 4 months। So, do you like maths more or biology? सर मैथ्स। Maths. यस सर। How many marks you got in metric in maths? सर इट वाज, एक तो अपना सर नहीं लाया करो, ठीक है सर। इसको एक जगह पे साकित कर लो, ओके ठीक है? हिलजुल बहुत करते हो। ठीक है सर। इंटरव्यू में सिर्फ मुंह बोलना चाहिए, बाकी कोई हिलजुल नहीं होगी। ओके सर। इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। आपके सामने मैं बैठा हूँ ना, मैं कितना हिल रहा हूँ, यस सर, आप नहीं है। ठीक है? वो हाथ मेरे हिल रहे हैं, वो फॉर सम अदर रीजन। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी स्टैटिक बैठा हूँ। स्टैटिक पर्सनैलिटी इज़ अ गुड पर्सनैलिटी। हिलजुल पर्सनैलिटी मतलब ये कि आप अंदर से भी और दिमाग से भी हिले जुले हुए हैं। सही। Why you want to join Pakistan Army? सर आई मेंशन्ड बिफोर व्हेन आई ये तेज़ी वाले बात ना किया करो। ठीक है सर। वो एक सवाल तुमसे 10 दफ़ा का मुझे पता, मैंने पूछा हुआ है, वो मुझे पता था तुम्हें यही चलोगे जो अभी हो रही। वो तो फिर यही है कि अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट इन मैट्रिक, आपको जी ऑलरेडी रिटन इन द फॉर्म, फिर तो हर सवाल का जवाब यही आएगा कि नहीं आएगा। वो कहेगा ऐसे ही होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वो आपको जी बताया हुआ, आपको फॉर्म नहीं पकड़ा हुआ, आपने इसमें लिखा हुआ, अल्लाह फिर हाफिज़। तो इंटरव्यू की कहानी ख़त्म हो गई। यू डोंट हैव टू। यस, व्हाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी? Sir, when I said when I was born, my relatives told me your son will be an army officer. So these words inspired me a lot when I saw the. Mean कि you were able to listen to your relatives when you were born. Sir, I meant my teenage age. So you would have mentioned that, na? When I was a child, my Okay, sir. relatives, they used to tell me that he'll become the army officer. Okay, sir. ठीक है कि? Yes, So from that time, I started the craze for the army. sir. Okay, sir. ठीक है कि नहीं? So if not selected, what will you do and why? Sir, I will try again for my next course. Suppose it is your last chance. No, Okay, sir. You know you cannot apply in the army. Then what will you do? Sir, I will go for the role of artificial intelligence engineer. Right now you are doing BScs. Yes, sir. What is dark web? Sir, dark web, it's kind of a borderline surface above the internet, and 95% of the internet is based upon dark web. It was initially launched by the US government to tackle against the Germany war and intruders. However, later on it Against the engaged Germany. in Second World War. Yes, sir. They use it to protect their community and their guidelines through Was hackers. there internet available in the Second World War? Yes, When sir. internet started?
I'm sorry, sir. I don't know. यू आर अ फूल यार। हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहाँ पे इंटरनेट आ गया है, तुम सर, ये अगले को लिखा हुआ फुद्दू है। लगा रहे हो। ये लिखा हुआ है सर। कहाँ लिखा हुआ है? वो कल प्रेजेंटेशन हो रही थी एक बच्चे की, उसने बताया था कि यूएस ने जर्मनी के अगेंस्ट यूज़ किया। मैं आपसे बट पूछ आई रहा हूँ थिंक ना, यस सर, मुझे तो इसके आप बारे ही में कह कुछ रहे भी हैं। नहीं पता, लेकिन मुझे समझ आ रही है कि ये 2006 में यूज़ हुआ था। ये तो राम कहानी डाल रही है इंटरनेट का। तो अभी याद आया सर, 2006 में यूज़ हुआ। डार्क वेब 1996 में स्टार्ट हुई थी और 1996 ये में? एक ताइवान में एक बैठा शख्स था जो गोरा था, उसने किया था काम स्टार्ट। ओके, मैंने कल सुना है कि 2006 के अंदर ना यूएस ने यूज़ किया था, यूएस गवर्नमेंट ने। वो नहीं, आप देखो आप ना, विकीलीक्स एक की बात कर याद रहे रखो, होगे। Yes, sir. तुम google.com नहीं हो। बिल्कुल सर। You are not supposed to know each, although you are doing BScs. You are in which semester? फर्स्ट सर। First semester is a lull semester. यस सर। फर्स्ट सेमेस्टर में तो जो इंजीनियरिंग होती है, जितनी हमने सुनी पड़ी है, यस सर। उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जाता। यस सर। फर्स्ट सेमेस्टर इज द जनरल सेमेस्टर। अब तुम्हें खटका ये पड़ा हुआ है कि क्योंकि मैं BScs कर रहा हूँ, सर ने मेरे से डार्क वेब पूछा है, मुझे आना तो चाहिए। मुझे डार्क वेब की जो है ना वो सारी पता होनी चाहिए। तो सिंपल को आई नो नथिंग, ओके सर। सर आई डोंट नो, कहानी ख़त्म हो जाती। तुम अपनी भुन रहे हो कुछ ऐसी कि जो मेरे जैसे बंदे को जिसको कुछ नहीं पता उसको भी इतनी सेंस है कि यार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंटरनेट था ही नहीं। बिल्कुल। और ठीक है वो सर। तो जो आपसे पूछेगा उसको पहले से पता होगा आपने क्या किया हुआ है, उसके पास वो तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। ये आप मत समझो कि वो ऐसे ही बैठा हुआ है। ये सर। आल्दो कि उसको खुद कुछ भी नहीं पता कंप्यूटर के बारे में, लेकिन उसके पास कोई ना कोई पर्चा, कोई फाइल, कोई बुकलेट ऐसी ISSB वालों ने उसको अवेलेबल की हुई है, या वो पहले खुद भी रिसर्च करते हैं बैठ के, जो बंदा मेरे पास आ रहा है ये कौन है और इससे मैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस कर सकता हूँ। जिन पे स्टार है सर वो एक बार चेक कर यार लीजिएगा। मुझे डर लग रहा है, तुम तेज़ बहुत हो, ये तेज़ी तुम्हें मरवा देगी। ये सर, ये मुझे अपना खुद का फॉल्ट यही लगता है। ठीक है कि नहीं? तुम जो है ना नॉर्मल हो जाओ। मैं कई दफ़ा कहता होता हूँ कि कुछ लड़के मेरे पास तैयारी करने आते हैं, उनको मैं ऊपर से पेड़े मार के नीचे करता हूँ एडिट्स को ज़्यादा। और कईयों को नीचे से ऊपर करता हूँ। ये तुम्हारी तेज़ी जो है ना ये तुम्हें मरवा देगी। हु इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी? सर माय फादर। अब once again he is your favorite personality and whatsoever you did till now that was against him. अगेंस्ट हिम, यस सर। तो ये तो फिर कंट्राडिक्शन आ गई Contradiction हो सीधी गई। की सीधी। या तो फिर वो ना बोलो ठीक है सर। या ये ना लिखो। ओके सर। सर एक इसका जो डू यू लाइक योर मदर मोर और योर फादर? सर मैं मदर। तो राइट योर मदर एज योर फेवरेट पर्सनैलिटी। यार तुम अजीब आदमी हो। Okay, sir. तुम कर क्या रहे हो? तुम खुद लगा रहे हो अगले। सर अगर मैं वाई डू यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी, वहाँ पे ये मेंशन कर दूँ कि बिकॉज माय फादर वांट्स मी टू जॉइन पाक आर्मी। बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। ठीक है। लेकिन अगर फिर वो बाद में वो SRT करेगा कि अब्बा जी मना कर रहे हैं, तो अगर अब्बा जी के तो फिर मैं कहने मना हो पे जाऊंगा। जा रहे हैं तो फिर अब्बा जी कहने पे रुक भी जाएं। यस सर, रुक भी जाऊँगा, फिर मैं ज्वाइनिंग लेटर नहीं लूँगा। ठीक है कि नहीं? ये दो मेथड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन। इन दोनों के अंदर सर में ASRC के अंदर अंकल हैं और वो हमारे नेबर हैं SM रिटायर्ड, उन्हें वो कल मरवा देंगे तुम्हें। उनकी मैंने बातें ज़्यादा भी नहीं सुनी, मैंने जो बातें वो आपने मरवा बताई। देंगे वो। यस सर। टाइम के साथ फिर लोग कहते हैं कि सर आप जो है गालियाँ देते हैं। आप दे दें सर, कोई बात नहीं। मैं तो नहीं रुकता। आई डोंट केयर व्हाट पीपल से। आई हैव रेड मैनी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज। लोग यही कहते रहे हैं कि जब वो मरे हैं ना तो उनको जो रिग्रेट्स हुए, सबसे बड़ा ये रिग्रेट था कि यार हम सारी ज़िंदगी वही करते रहे कि लोग क्या कहेंगे। ये बेंच तुम्हारी इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है, तुमने लिखा है बैड हैंड राइटिंग, तुम तो गांडू आदमी हो। उर्दू की। यार ये कहानियाँ मत डालो ना। हैंड है राइटिंग होती है, उर्दू की भी सही हैंड राइटिंग है तुम्हारी। तुमने हैंड राइटिंग देखी नहीं है। यहाँ पे तुम्हें मैं चौधरी निकाल के बताऊँ जरा, देखो तुम तो टक्करें मारोगे। मेरे नज़दीक बहुत नहीं है। ठीक, गंदी नहीं है ना। हैंड राइटिंग क्या अच्छी होती है? इफ अ मैन कैन राइट एंड इफ अ मैन कैन रीड, इट्स अ गुड हैंड राइटिंग। तो ये तुम्हें मरवा देगी। ये पीछे लड़का एक था, उसने अपना लिखा हुआ था कि आई एम वीक इन इंग्लिश, और उस ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट में वो ऐसे अंग्रेज़ी बोल रहा था जैसे कोई शहजादा चार्ल्स होता है। तो डिप्टी ने उसको लिटा लिया, उसके हवाइयाँ उड़ गई, रंग उड़ गए उसके। ऐसे तो नहीं काम चलता ना। यस डू यू रीड बुक्स? यस सर, आई डू। You read books. यस सर। Alright, tell me the name of the book. सर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। Any other book? यस सर।
Name? Psychology of Money. All right. Give me the summary of this book, Psychology of Money. Yes sir. Sir, Psychology of Money. एक तो ये yes sir नहीं बोला था. ठीक है सर. आगे. Psychology of Money focuses on how to manage your funds and investments effectively. When you have read this book? Sir, a month ago. And, how many pages this book has? I don't know, sir. And you can talk only a line on that book. I can talk more, sir. Then talk. Okay, sir. Sir, Psychology of Money focuses on how to manage your funds and investments effectively. It tells you techniques by experiences of great investors before time, and it tells you effective methods to manage your funds, money, and how to use them in investments, mutual funds. All right, you have got 10 lakhs. Yes, so, sir. according to that book, now, what will you do? Okay, sir. Sir, I will divide it into 4 parts, 25,000 each. 25, 2,50,000 each. And first portion, I will keep it in my bank. Second portion, I will do an investment either in cryptocurrency or stock market. Third investment, I will still use that in funds and save it for emergency, for example, like accidents or etc. And fourth one, I will do charity. You will do charity. Yes, sir. It is written in that book. Yes, sir. That 25% of your assets, you and you think you will be able to get handsome amount to pass your daily chores. Sir, where? If you are married, you have got a family, will you be able to generate enough funds through this technique for your family? Yes, sir. I am confident in it. यार लंबी है ना छोड़ा कर. ठीक है सर. 2.5 लाख रुपया स्टॉक एक्सचेंज में लगा के यस सर. किड़ा को बंदा इतना कमा सकता है. अभी अगर मिनिमम भी छोटी फैमिली है ना, मियाँ बीवी और एक बच्चा, बेशक अंडर प्रोसेस हो, ठीक है, उसको लाख रुपया चाहिए महीने का, अगर उसका घर अपना भी है तो. यस सर. तो तुम ये अगर 2.5 लाख से लाख रुपया अगर लोग कमा लें तो फिर तो कहानी ख़त्म हो जाए. क्यों गुलाम हुसैन? जी सर. मैं कहा 2.5 लाख से अगर 1 लाख रुपया महीने का अगर इफ़ यू कैन अर्न तो फिर तो यश ही नहीं है. यहाँ तो लोग करोड़ों लगा के नहीं कमा पा रहे. तुम सब कहानी बाज हो, ये तुम में कुछ भी नहीं है सर. ये तुम जो है ना, जो अगला बंदा बैठा है ना, उसको तुम फुद्दू समझ रहे हो. एक डीमेरिट ये भी है. ये डीमेरिट नहीं है, ये बगैरती है. यस सर. मैंने इतनी दफ़ा बताया है कि फुद्दू जो है ना, वो हमेशा अपने से छोटों को लगाया जाता है. यस सर. अपने से बड़ों को फुद्दू नहीं लगा सकते कभी आप. इस बात को ध्यान में रखो. डन सर. और तुम लगातार वही कर रहे हो. जिस दिन मैं तुम्हें फर्स्ट डे मिला था मुझे यही लग रहा था, बट ये है कि तुम्हारी बर्बादी है कि तुम इतना मुझे मिले नहीं. यस सर. वैसे सर उसमें व्हाट इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ? सर, a financial loss I did. व्हेन? Sir, in my first year. व्हाट यू डिड? Sir, I invested a sum of money in an investment company, and I lost it all. हाउ मच मनी? Sir, 1 lakh. फ्रॉम वेयर you got that 1 lakh? Sir, from my parents. And you told them that you are going to invest it. Yes, sir. Still you are a fool. Don't tell him this thing. Okay, sir. वैसे तो तुम्हारे अब्बा जी को भी सलूट मारना चाहिए. लेकर आना दोबारा वर्दी पहन के ना, फिर उनको सलूट मारूंगा. हैं? क्या अब्बा जी क्या हवालदार हैं? Yes, sir. हाँ, तो बीइंग अ कैप्टन आई एम रेडी. वो जो इन्होंने काम डाला ना, ये वाला सर, वो फर्स्ट ईयर के convince छोरे कर को लिया 1 था लाख इस तरह. रुपया दे दिया कि जाओ जाके इन्वेस्ट करो, और वो जो है ना वो सारे सर वो पहले लेके- कमाए थे सर थोड़े से ना, फिर इसलिए दिया सर. वो एक बंदा था, गरीब आदमी था, उसके पास थी परचून की दुकान. तो वो रोज़ पैदल अपनी दुकान जाता था, तो उसकी बीवी को थोड़ा उस पर तरस आया, तो उसने कुछ कर करा के
उसको एक पुरानी साइकिल ले दी। अब वो साइकिल पे जाता था, वो साइकिल अपनी दुकान के सामने खड़ी करता था। 2 बंदे आए उसके पास, परचून वाले के पास। उन 2 में से एक बंदे ने कहा कि यार मैं कोई काम जाना, अपनी साइकिल दो। वो साइकिल लेके चला गया। काफ़ी देर देखता रहा, वो नहीं आया। वो जो दूसरा बंदा बैठा था वो जाने लगा। उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं जाऊँ। उसने कहा वो साइकिल ले गया। था मैं कौन जानता हूँ वो कौन है, मैं कौन जानता हूँ वो कौन है। वो बेचारा रोने लग पड़ा कि यार मेरे पास बड़ी मुश्किल से एक छोटी साइकिल आई थी और वो साइकिल भी जो है वो ऐसे मेरे साथ वो हो गया। उसने कहा यार टेंशन नहीं लो, इस तरह करते हैं कि मेरा बंदा जान पहचान वाला है, मैं तुम्हें उससे साइकिल दे देता हूँ किस्तों पे, तो तुम किस्तों पे साइकिल ले लो, आहिस्ता आहिस्ता देते रहना। मैंने कहा चलो ठीक है। वो दुकान बंद करके उसके पास चले गए। वहाँ से उन्होंने साइकिल ख़रीदी, किस्तों के जो भी होते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह साइन किए। तो जब नई साइकिल लेते हैं तो फिर उसको चेक भी करते हैं चला के ना। तो जो बंदा साथ गया था उसने कहा मैं ज़रा इसको ज़रा चेक करके आता हूँ। वो चेक करने लेके गया, वो भी गायब हो गया। बैठा रहा, वो आया नहीं। तो साइकिल वाले ने कहा कि यार, कहता है वो तो कहता है मैं तुम्हारा जानने वाला। कहता मैं कहूँ मैं क्यों जानता हूँ उसको। तो उसकी अपनी साइकिल भी गई, किस्तों वाली साइकिल भी, किस्तें इसको पड़ गई। तुम्हारे साथ वो हुआ। चलो ठीक है, बंद कर।